Hello friends, this is Math Guru Pawan Wag. Today we will solve some questions based on 30-60-90 theorem and 45-45-90 theorem. Our first question is, in triangle XYZ, angle Y is equal to 90 degree, angle Z is A degree and angle X is A plus 30 degree. If XZ is 24, find XY and YZ. To find XY and YZ, we have to find first angle X and angle Z. Okay, so in triangle XYZ, from angle sum property. What is the angle sum property? Angle sum property means the sum of the three angles of the triangle is 180 degree. So right here angle X plus angle Y plus angle Z is equals to 180 degree. Now substitute the value of X and Y, X, Y and Z here. The value of X is, that is A plus 30, at the place of Y 90 degree, at the place of Z A degree. A and A, it will be 2A, and 30 plus 90, it will be 120. 2A plus 120 is equals to 180. This 120 will shift this side, so 2A is equal to 180 minus 120. So 2A is equals to 60 degree. So the value of A will be 60 upon 2, that is 30 degree. तो एंगल Z जो होगा वो 30 डिग्री का हो जाएगा. ओके, नाउ एंगल एक्स कितना है? एंगल एक्स है a प्लस 30. तो a की वैल्यू कितनी है? 30 है. 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ x विल बी 60 डिग्री. तो अगर आप इसे देखें तो ये 30, ये 60 और ये 90. सो इट्स 30 60 90 triangle XYZ is 30 60 90 triangle. So according to the 30 60 90 theorem, the side opposite to 30 degree is half the hypotenuse and side opposite to 60 degree is root 3 by 2 times the hypotenuse. तो आप लिखिए xy is equals to half xz and yz is equals to root 3 by 2 xz. देखिए xy जो है वो हाफ द xz है और yz जो है वो रूट 3 बाई 2 टाइम्स xz है. अभी आपको क्या करना है? यहाँ x की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है xz की. तो 1/2 into 24, so x is equals to 12 and here root 3 by 2 into 24, so 2 से 24 कैंसिल होगा, it will be 12 root 3. तो yz की वैल्यू हमारे पास है 12 root 3. Question number 2. Find the sides of the square whose diagonal is 16 root 2 centimeter. मीन्स हमें एक स्क्वायर देके रखा है जिसकी डायगोनल देके रखी है, हमें इसकी साइड्स निकालनी है. Before solving this question, we should know what is a square. Square is a special type of quadrilateral whose all sides are equal and all angles are right angle. तो यहाँ हमें अगर ध्यान से देखें तो we get a right angle triangle. हमें इस right angle triangle को लेकर सॉल्व करना है. Okay, but right here first we know that in square all sides are equal and all angles are equal. all are all angles are 90 degree. Okay, सभी एंगल्स जो होते हैं वो राइट एंगल होते हैं. एंड इन ट्राइंगल ABC इज इन ट्राइंगल ABC एंगल B कितना है? 90 डिग्री है. ओके, बिफोर सॉल्विंग दिस लेट अस राइट that AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA. These are the sides of square. Now in this triangle, from Pythagoras theorem we can write that AC square is equals to AB square plus BC square. और AC तो AC की वैल्यू क्या है? दैट इज 16 रूट 2. तो हमें यहाँ पर 16 रूट 2 पुट करना है. AB स्क्वायर की जगह AB स्क्वायर पुट करना है. BC स्क्वायर की जगह पर मैं AB स्क्वायर लिख सकता हूँ बिकॉज BC एंड AB आर इक्वल. तो देखिए AC की जगह हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, दैट इज 16 रूट 2 स्क्वायर. AB स्क्वायर एज इट इज. BC स्क्वायर की जगह हमने AB स्क्वायर लिखा है. तो ये 16 रूट 2 का जो स्क्वायर हम करेंगे, 16 का स्क्वायर होगा 256, रूट 2 का स्क्वायर होगा 2. AB स्क्वायर होगा 2AB स्क्वायर. ये 2 यहाँ अपॉन में जाएगा. वी विल गेट AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256 इंटू 2 इंटू अपॉन 2. देखिए ये अपॉन में 2 जाएगा, ये 2 कैंसिल होगा. वी विल बी हैविंग, हमारे पास है AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256. तो इस स्क्वायर को मैं हटाता हूँ, यहाँ स्क्वायर रूट लगेगा. AB इज इक्वल टू अंडर 256 मीन्स द लेंथ ऑफ AB इज 16, सो दैट दिस साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर. तो ये जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है? 16 सेंटीमीटर है. क्वेश्चन नंबर 3 अब हम सॉल्व करेंगे.
In figure, if LK is equal to 6 root 3, find MK, ML, KN, MN and perimeter of MNKL. देखिए अभी आपको क्या करना है, पहले तो हमें हमारे पास सिर्फ एक साइड है, ये वाली LK दे के रखी है, हमें ये साइड निकालनी है, ये साइड निकालनी है, ये साइड निकालनी है और फिर चारों को प्लस करना है। लेकिन देखिए ये साइड जो दे के रखी है, आपको ये दो साइड निकालने के लिए आपको यू हैव टू फाइंड दिस ऑल्सो। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन शुरू करें। देखिए इन ट्राइंगल MLK कि व्हाट, देखिए ये 30 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो डेफिनेटली ये 60 का होगा। सो ट्राइंगल MLK इज 30 60 90। ओके, तो अकॉर्डिंग टू 30 60 90 थ्योरम व्हाट वी कैन राइट, 30 के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस की हाफ होती है और 60 के सामने की जो हाइट होती है वो साइड होती है वो हाइपोटेनियस की √3/2 होती है। तो सबसे पहले हम लिखे फ्रॉम द थ्योरम 30 60 90 थ्योरम, LK, ये LK 60 के सामने की साइड है, LK इज इक्वल्स टू √3/2 MK। देखो LK इज इक्वल्स टू √3/2 MK और ML इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ MK। अभी देखिए हमारे पास में सिर्फ LK की वैल्यू है, लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर। तो यहाँ आ जाएगा 6√3 इज इक्वल्स टू √3/2 MK। ओके, अब इस 2 का ऊपर और √3 का नीचे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 6√3 इंटू 2 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू MK। √3 कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 6 इंटू 2। ओके, तो MK की वैल्यू हमें मिल गई 12, MK हमारे पास आ गया 12। नाउ हमें निकालना है ML। ML कितना है, ML ये 30 के सामने की साइड हाइपोटेनियस की हाफ होती है, तो हम यहाँ MK की वैल्यू पुट करें 1/2 इंटू 12, तो 12 2 से कैंसिल होगा, वी गेट 6। ML की वैल्यू आ गई 6। ओके, नाउ अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल MKN, इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, तो डेफिनेटली ये जो एंगल होगा 45 का होगा। मीन्स ये ट्राइंगल जो है वो 45 45 90 का है। सो अकॉर्डिंग टू द 45 45 90 we can write that these two sides are 1/√2 times the hypotenuse। तो 1/√2 टाइम्स होगी हाइपोटेनियस की, तो आप यह लिख सकते हैं कि MK and NK is equals to हाफ 1/√2 MN। अभी देखिए MK हमारे पास है क्या, वी हैव MK दैट इज 12, तो यह लिखिए 12 वैल्यू पुट कीजिए 1/√2 MN, ये √2 इधर मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये √2 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 12√2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये MK मिला है, देखिए ML मिला है और MN मिला है। देखिए MK कितना है, MK है 12, ये भी फिर कितना होगा, ये भी 12 ही होगा। ML कितना है, ये 6 है। MN कितना है, 12√2 है। एंड इन ट्राइंगल MKN ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होगी, एज आई टोल्ड कि MK और KN ये दोनों 12 के हो जाएंगे। तो देखिए हमारे पास अब सभी साइड्स आ गई हैं। वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल MNKL। सो नाउ द पेरीमीटर ऑफ MNKL मीन्स MN प्लस NK प्लस KL प्लस ML, ये चारों का सम करना है। MN कितना है, देखिए MN ये है 12√2, तो MN की जगह 12√2 पुट करते हैं। NK कितना है, NK इज 12, देखिए KN बोलो या NK बोलो वो 12 है। देन KL कितना है, KN बोलो या NK बोलो, KL कितना है, KL, वेयर इज KL, KL it was given that it is 6√3। ओके, एंड ML कितना है, ML है 6, तो हमने इन सबको एक साथ लिख के इनको ऐड करना है। पहले हम अब जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, रूट रूट वाले ऐड होंगे और नंबर नंबर ऐड होंगे, तो 16 पहले, और रूट रूट सेम होना चाहिए, यहाँ पर रूट सेम नहीं है, ये होगा 12 और 6 ये होगा 18, 12√2 6√3, या हम इसको 6 कॉमन निकाल ले तो ये होगा 3 प्लस 2√2 प्लस √3 होगा ब्रैकेट के अंदर, और 6 हमने इससे बाहर निकाल लिया है, तो 6 इंटू 3 प्लस 2√2 प्लस √3 यूनिट। तो इस तरह से हम क्वाड्रिलेटरल का हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। सच क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
So just solve such type of questions. Thank you for watching this video. Please watch our next videos to know more about similar triangle. Thank you very much.